Hello everyone, this is Himani Vij and welcome you all to the We the Youngsters podcast. So, who is our today's guest? Guess who's the best person I wanted you to introduce with? Yes, the man himself, Srijan Bhardwaj, who has inspired a lot of people and helped even a lot of people to scale their business digitally and is continuously doing a better stuff every single day to reach out more people. And in this podcast, he's going to share with us his journey, his startup ideas, his techniques of doing business, so we all can actually learn a lot of things from him. So let's just get started and let me welcome. Hello Srijan, how's you? Hi, Amani. I'm great. Thank you for inviting me to this podcast. Yeah. Happy being here. Thank you, because you are the part of our podcast and we are really appreciating your efforts to actually give value to a lot of people. So, Srijan, I would like to know, and my audience as well would like to know, how you came across digital marketing and how you felt like I wanted to be in this and how you started your whole journey. In short, like what are the things which make you passionate that you wanted to do and be in front of a lot of people all over India? Okay, so that's a great question, Amani. So I did engineering like most of the people in India. And while I was doing engineering, I just wanted to do one thing, that I wanted to stand out from the crowd. I wanted to have an identity. So that's how I got about, like, while researching, doing random projects and, doing random internships, I got across digital marketing. And when I started researching about it, I liked the whole concept. I remember when SEO and affiliate marketing, website development, इन सब चीजों से start किया था. And I did a couple of courses as well, but they did not lead to any fruitful results. So जो भी मैं internships वगैरह से पैसा कमाता था, थोड़ा बहुत, I used to reinvest all of it in the online thing. And for 3.5 years, I never made a single rupee. But I had got a lot of knowledge. And I'm talking about like 2013. The business resources were there. So there were very limited people who you could follow and gain knowledge from. So one day I met a guy in an online community who shared a few things with me that were going wrong. Implementing it, I made first 3,000 rupees of my career, like online career. And apart from that, at that month, I had the option to either, like just around that month, my engineering was almost done. So either I could have gone for a campus placement, like Accenture or Infosys, or I could have started my own. And I took the risk of starting this online thing. And for the first 20 months, we were in loss. Like for the first 18 to 20 months. तो जितना पैसा सेव वगैरह करके रखा था वो सारा थर्ड मंथ में खत्म हो गया था. And then we had to take a loan from the market. We had to borrow money from friends. वो सारा भी खत्म हो गया था. But yeah, then one thing led to another. We started doing random projects. हमने काफी सारी चीजें try करी. A few of them worked. And finally 20 months later, we got to break even. And वहाँ से I found that this was my passion. Like वो 18-20 महीने में ये क्वेश्चन नहीं करा कि मैं लॉस में क्यों, why I'm not getting money. My only thing that kept me going was कि I loved doing what I was doing, and I thought this is something different. That's really awesome, because we all need courage to take this much of risk. And the audience, whoever is listening to this podcast, I wanted to listen it very carefully, that risk is the number one factor whenever it comes to your passion. It's always equal to your passion. If you're taking risk, there is always chances, and if you're not, there are always zero chances. So always take risk, as Srijan Bhardwaj is saying. So one more question, Srijan, like why everyone should be digital, like why everyone should be on digital platforms, how much it is important in today's generation? Yeah, that's an excellent question, Imani. I'm glad that you brought this up, because I think all of us are getting on the digital platforms. हम सारे WhatsApp use करते हैं, सारे Instagram, Facebook use करते हैं. And I see my teenager cousins using TikTok as well. And I think the world is getting digital. The only thing is
that I ask everyone is, are you using this in your advantage or are you just wasting your Yeah, time? exactly. Yeah. So I will give you an example of someone from my own family. So he had a shop earlier, and he, like, when you have to set up a shop, आपको पहले एक inventory रखनी पड़ती है, then you have to have a staff, you need a showroom or some space, बिल्कुल. and then सबका खर्चा almost 1-1.5 लाख रुपए a month पहुंच जाता है, and then sale होगी या नहीं होगी, you cannot control the footfall. So I have seen businesses going down, businesses getting shut, क्योंकि वहां पे वो अपना कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते कितने लोग आएंगे. बट ऑनलाइन वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आज आपके पास एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जहाँ पे 3,000 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ से इफ यू डू योर मार्केटिंग राइट, यू कैन इजीली गेट 30 न्यू कस्टमर्स इन अ मंथ. Exactly. That is hardly 1%. बिल्कुल बिल्कुल. So that would be my whole goal, that for the people I talk to, I just tell them that आप करो एक दूसरे से बात, आप TikTok वीडियोस वगैरह भी बनाओ, but just think about how you can also take advantage of it. वरना बस आप ये ना हो कि आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो. Whatever you do, always think कि how can I bring more value, how can I be a problem solver. बिल्कुल. Okay, that's really good. That because digitally it's so much easy and cost effective. You don't need any space. You don't need to have that much of inventory. You don't really need to have that much of manpower as compared to online. We need for the technical stuff, but somehow it's less effective as compared to other things. So I believe that everyone should be on digital platforms, because this is the time to actually expand your business in a new way, with new innovation techniques, and new opportunities are actually coming on a way to youth, so they can actually utilize and can build something great out of it, right, Srijan? Yeah, absolutely. Yeah, I agree with you. Yeah. So Srijan, what are your thoughts on sales? Okay. I love sales. मतलब so what I have seen is कि हम ना sales को बहुत negative way में देखते हैं. बिल्कुल. When I tell people that I am a salesman by heart. That's what I tell everyone. So people are like, oh shit, फिर से भी बेचने आ रहा. And I think that's a huge misconception. Like, just to give you a small example, कभी हम किसी सुपरमार्केट जाते हैं या कोई भी ऐसा मार्केट जाते हैं, वहाँ पे as soon as a salesperson comes up, even when you go to a showroom, हम अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं. बिल्कुल. दूसरे बोल देते हैं कि नहीं we are okay, we are fine, हम देख लेंगे खुद. Because sales लोग समझते ही नहीं, and I would say it's the most noble thing that you can do. Because sales का मतलब simply ये होता है कि आप सामने वाले की नीड को कितना समझ पा रहे हो, और उसकी प्रॉब्लम के लिए अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप उसको वो सोल्यूशन दे पा रहे हो, आप उसे कन्वे कर पा रहे हो कि इस सोल्यूशन से आप ये अपनी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो. तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए कि मेरा सर दर्द हो रहा है, डॉक्टर मेरे को बोलता है कि आपका हेडेक हो रहा है तो आपको दवाई ले लेनी चाहिए. मैं तो ये मानता हूँ इन दैट मोमेंट द डॉक्टर इज सेलिंग मी दैट मेडिसिन, एंड मैं उसकी दवाई लेता हूँ तो इवन ही गेट्स अ कट. तो दैट इज सेल्स. लाइक आपके अराउंड, आप चाहे एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक इंटर्नशिप लेना चाहते हो, आप एक इंटर्नशिप अचीव करना चाहते हो कुछ, तो आपको तब भी बाकी लोगों से कॉम्पीट करना है. यू हैव टू सेल योर आइडिया, यू हैव टू सेल कि व्हाई यू शुड बी सिलेक्टेड आउट ऑफ ऑल द पीपल. तो आप खुशी से करो या आप दुख से करो, सेल्स को आपको लाइफ लॉन्ग करनी पड़ेगी. बिल्कुल. इवन अगर आपको कोई रिलेशनशिप में आना है, if you're a girl or a boy and you want to date someone, आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा why you are different and why the other person should choose you. Very good example. I believe that all the audience who actually want easy examples to understand sales, this is the best one, guys. Do listen it carefully. Like I see, like I would say, आज के time में what I see is teenagers are the best sales people. Yeah. जो अपना आइडिया, अपनी क्रिएटिविटी across the platforms बेच रहे हैं. More and more people are glued to what they are doing. So do not be someone जो ये बोलता है कि मुझे सेल्स नहीं अच्छी लगती. In fact, see how you can take advantage of it. क्योंकि मेरा एक मानना है कि अगर आप सेल्स नहीं कर रहे, then someone is selling to you. या तो आप किसी को कोई सामान भेज रहे हो या कोई आपको भेज रहा है.
why बिल्कुल not you be the one who sells something and make बिल्कुल money? बिल्कुल बिल्कुल so one more question, like I do have a lot of question from you because my audience and we really wanted to exchange a lot of value with each other. So the one more is Right. that how actually marketing techniques has been changed from past years. What are the major things which are changed and what are the things we need to, हमें अब की जनरेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन पाने के लिए क्या करना चाहिए डिजिटली. Okay. So बहुत अच्छा सवाल है. लाइक आई वुड से हमारे कि मेरे को ये 1.5 साल पहले रियलाइजेशन हुआ कि ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में देयर आर ओनली 2 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. Number 1 is that you need to build genuine relationship with people, Yeah. and number 2 is you need to have authentic conversations. मैं इन्हें बोलता हूँ CR मार्केटिंग प्रिंसिपल, कॉन्वर्सेशनल एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग. Exactly. इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके इंस्टाग्राम पे 136,000 फॉलोअर्स हैं, तो कुछ ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं. तो अब मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि अरे अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे पहले 1-1.5 लाख फॉलोअर चाहिए. बट जब आपने भी स्टार्ट किया होगा तो आपने बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करा होगा. बिल्कुल. Exactly. एंड कहीं ना कहीं आप जो मैं देख पाता हूँ मैक्सिमम लोग जो ये चीज में गलती करते हैं, यही होता है कि हम सोचते ही नहीं कि हमें एक्चुअली में क्या वैल्यू लेकर आनी है. हम नंबर्स को बहुत चेज करते हैं. तो जो सीआर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में आपको बता रहा हूँ वो सिंपली ये बोलता है कि आप नंबर्स को मत देखो. आप अगर आपके 10 फॉलोअर्स नहीं है तो आप उन्हें 10 लोगों की तरह देखो. बिल्कुल 10 लोग जो आपको फॉलो कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड है. बिल्कुल बिल्कुल जैसे आप भी जानते होंगे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बिल्कुल. उनके लाखों की फॉलोअरशिप होती है, बिल्कुल बट वो कुछ भी मोनेटाइज नहीं कर पाते अपनी फॉलोअरशिप को, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने आज तक कभी किसी से बात ही नहीं करी, उन्होंने कभी किसी में इंटरेस्ट ही नहीं लिया, बिल्कुल उन्होंने कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई ही नहीं. उन्होंने बस ये सोचा कि हम कंटेंट अगर डालते रहेंगे तो लोग अपने आप आते रहेंगे, कुछ ना कुछ खरीद लेंगे. बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे कॉन्वर्सेशन नए लोगों से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जस्ट टू शेयर एन एग्जांपल, मैं ऑन अ डेली बेसिस 50 से 60 नए लोगों को रीच आउट करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे जो मुझे फॉलो करते हैं. एंड ऑन अ वीक अगर हम देखें तो कुछ 300 के अराउंड नंबर बैठता है. तो एक महीने में मैं 1200 नए लोगों से बात कर रहा हूँ. हाँ, सारे 1200 लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, मैसेज भी नहीं देखेंगे, पर 200 से 300 लोग भी अगर मैसेज देख के रिप्लाई कर रहे हैं. अब मेरे पास 200 से 300 लोग ऐसे हैं जिनसे मैं डोर्स खोल चुका कम्युनिकेशन के. ये 200 से 300 न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर मैं इनकी नीड समझ सकता हूँ तो मैं कल को इनको एक प्रोडक्ट पिच कर सकता हूँ. बिल्कुल. जो इनकी हेल्प करे. बिल्कुल. तो अगर आप अपना पर्सपेक्टिव फॉलोअरशिप की जगह से हटा के लोगों पर लेकर आए, एंड अगर आप ये सीआर प्रिंसिपल यूज करें कि हैव जेन्युइन कन्वर्सेशंस एंड बिल्ड ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ विद इन 30 डेज ऑफ डूइंग दिस, आप अगर लोग 50 लोगों को रीच आउट कर रहे हो, 59 लोगों को, एंड आप 1 लाख रुपए नहीं कमाते. सो अभी हमने मुंबई में एक मीटअप किया था ऑन 22 ऑफ दिसंबर, जहाँ पे मैंने ऑन वीडियो ये गारंटी दी थी कि अगर आप नेक्स्ट 50 डेज के लिए 50 लोगों को रीच आउट करते हो एवरी सिंगल डे, व्हिच मींस आप 1500 लोगों को रीच आउट कर रहे हो. वो रीच आउट करने के बाद अगर आप मिनिमम 1 लाख रुपए नहीं कमा पा रहे तो मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा एज अ कॉम्पेंसेशन. दैट्स द ग्रेट ट्रेट ऑफ सेल्समैनशिप मैन. क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भरोसा है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड ये तो आप भी जानते ही हैं कि आप एक छोटी सी प्रोफाइल से भी बहुत पैसा कमा सकते हैं, बड़ी प्रोफाइल से छोटा पैसा भी कमा सकते हैं. बिल्कुल ही ना कमा. It's all about relationships and how you nurture people and take care of them. राइट. बिल्कुल. जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो आई कुड सी कि आपका एंगेजमेंट बहुत अच्छा है, लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, लोग आप थैंक यू बहुत अप्रिशिएट बहुत करते हैं. व्हिच मींस कहीं ना कहीं एज अ लीडर आपने अपने आप को एस्टैब्लिश करा है. अब कल को अगर कोई बंदा देखता है कि एक इन्फ्लुएंसर है हिमानी वेज नाम की वर्सेस एक रैंडम बंदा है, तो आप ऑलरेडी अपना को, क्योंकि इतना ऑडियंस को वैल्यू देकर इनसे कनेक्ट करके नर्चर, अगर मेरे जैसा कोई रैंडम स्ट्रेंजर अगर आता आपकी प्रोफाइल पे, तो वो सिर्फ
लोगों की अप्रिसिएशन देख के इन्फ्लुएंस हो सकता है कि यार ये बंदे में कोई बात है, मैं इसका प्रोडक्ट ट्राई करता हूँ। समवन जिसके कुछ लोग अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, बोल ही नहीं रहे कि इसकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ चेंज आया। Means we really need those people who need us. That's all we can say. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपने बिल्कुल परफेक्ट वर्ड्स में से सम अप कर दिया। बिल्कुल। So Srijan Bhardwaj has is actually like, I am like mesmerized with the lot of value he is actually providing on this podcast, and we wanted to dig more deeper with him because I am not done right now, so you need to be with us even more longer and stay still interested in what kind of questions I'm going to ask. So Srijan, what were the challenges? What were the challenges you faced when you started doing a lot of things as a beginner? Okay. That's a lovely question. मतलब Exactly. ये ऐसा सवाल है जो मैक्सिमम लोग नहीं पूछते हैं। So हमारे अगर मैं सच बताऊं तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था, मैं ना बहुत शाय हूँ। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी लोगों को लगेगा कि ये बंदा तो कितना आराम से बात कर लेता है, बट मैंने जब अपना स्कूल भी कंप्लीट करा था, मैं अपनी क्लास का सबसे चुप बच्चा था, और मैं बाय नेचर बिल्कुल एक मतलब शाय और रिजर्व टाइप आदमी हूँ। तो मुझे ना रिजेक्शन से बहुत डर लगता था स्टार्टिंग में। अच्छा। कि अगर मैंने कोई काम के लिए किसी कंपनी को अप्रोच करा, या अगर मुझे क्लास में अनाउंसमेंट करने भी है, अपनी क्लास में अनाउंसमेंट करनी है, जिसे मैं रिप्लाई नहीं करा, तो एक बेइज्जती हो जाएगी, एक एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, एंड वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके बाद रिजेक्शन को ओवरकम करने में मुझे काफी टाइम लगा। समवेयर जब रिजेक्शन ओवरकम करी तो एक लैक ऑफ उस टाइम पे मेंटोर, मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। मतलब मैं मानता हूँ कि अगर उस टाइम पे मेरे पास कोई मेंटोर होता तो जो मैंने फर्स्ट 3.5 years के बाद एक सिंगल रुपी कमाया, वो शायद मैं 1-1.5 साल में कमा लेता, और मेरे 2 साल का टाइम बच जाता। बिल्कुल। तो अगर मेंटोर होता तो मेरे पास आज 2 साल एक्स्ट्रा होते जो मैं अपने बिजनेस में लगा चुका होता। तो दैट वाज द सेकंड बिगेस्ट चैलेंज। एंड थर्ड मैं बोलूंगा कि ये तो हम सबको फील होता है कि हमारा आसपास के जो सराउंडिंग में लोग होते हैं, हमें लाइक माइंडेड पीपल नहीं मिलते। आप चाहे जितना भी ग्रो करने की कोशिश करो, बट अगर आपके आसपास लाइक माइंडेड लोग नहीं है तो आप कहीं ना कहीं स्टक फील करोगे। बिल्कुल। एक रिसर्च हुई थी हमारी, जिसमें ये पता चला कि अगर आप एक शार्क को एक समुद्र में बेबी शार्क को छोड़ते हो तो वो 8 फीट तक लाइक उसकी हाइट जाती है, वर्सेस अगर आप उसे एक छोटे से एक्वेरियम में डालते हो तो 8 इंच से ऊपर ग्रो नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। आई हर्ड दिस एंड दिस इज द लाइक गाइस लिसन इट केयरफुली। या हाँ जी। सो मेरा वही मानना है कि जो मेरा थर्ड सबसे बड़ा चैलेंज था वो लाइक माइंडेड लोग ढूंढना था, क्योंकि ज्यादातर सारे आसपास के लोग किसी की बुराई कर रहे होते हैं, या काफी ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट्स में या नॉनसेंसिकल डिबेट्स में लगे रहते हैं, और अगर वो नहीं कर रहे तो कुछ मतलब वो अपनी ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। टीवी बहुत देखना या कुछ भी मूवीज बहुत देखना, मैं खिलाफ नहीं हूँ वैसे किसी भी चीज के, बट कहीं ना कहीं मुझे हमेशा इस चीज की कमी लगती थी कि मेरे पास ऐसे लोग नहीं है जो अपने ग्रोथ को, अपने करियर को लेकर इंटरेस्टेड है। तो आज के टाइम में अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपकी साल से सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, मैं बोलता हूँ अगर एक लाइक माइंडेड इंसान से भी मैं जुड़ पाया हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है साल की। बिल्कुल बिल्कुल। That's really good. मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये 3 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जो मैंने अब तक फेस करे हैं। Okay, so that's really great. We got to learn a lot of things from you. One more thing, like you must be thinking a lot of questions she is asking. Is she okay? नहीं बिल्कुल, आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हो। आप बेहिचक जितना पूछना है उतना सवाल पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, because I wanted to make it the best for my audience so people can actually know and understand that why risk taking and all the challenges are important for them. तो एक और क्वेश्चन सृजन मेरे एक्चुअली थॉट्स में आ रहा है।
कि अगर आप जैसे लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी डर जाते हैं जब कुछ नया शुरू करना होता है, उनको शुरू करने से पहले बाकी चीज़ों की बहुत जल्दी टेंशन पड़ जाती है। देर लाइक अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मतलब वो शुरू तो करना बहुत दूर की बात है, वो सोच सोच के ही इतने परेशान हो जाते हैं। आई बिलीव दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट इन ऑन। तो इसके बारे में आप ऑडियंस को क्या राय देना चाहेंगे? ओके, इसके लिए तो मैं आपको एक ही राय दे सकता हूँ। जो भी इंसान डर के मारे स्टार्ट नहीं करता, तो मान लीजिए ये अभी हम ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ये आमने सामने कर रहे होते और हमारे साथ 50 लोग बैठे होते और हम एक हॉल के अंदर बैठे हैं और उस हॉल को बाहर से कोई ताला लगा के गलती से चला गया और अब इस हॉल में आग लग गई। तो जो लोग अभी तक कह रहे थे कि हमें डर लगता है काम शुरू करने से, तो क्या वो लोग बैठे रहेंगे कि आग लगे तो हम बाहर ही नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डर लगता है? बिल्कुल। बल्कि मेरा मानना है माने कि जिन लोगों को डर लगता है ना वो सबसे पहले भागेंगे निकलने के लिए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनको हल्की से भी चोट आए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी चीजें मुझे रोक रही हैं या ये सारी चीजें होने चाहिए, तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप अपने किसी भी जो इंसान आपको बहुत इंस्पायर करता है, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स, आप उनके लिए मतलब इंसान एक मिनट के लिए सेल्फिश हो सकता है कि अपने लिए किसी को मोटिवेशन नहीं आती कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये सारी चीजें करूं, तो अपनी फैमिली का सोच के काम स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए बेस्ट कर सकें। ये भी आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड या वाइफ है। आप अपने लिए काम नहीं करोगे, ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि आप डिमोटिवेटेड हो या आपको डर लग रहा है कि ये बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बट कल जब आपके फैमिली में कोई आपसे पूछेगा तब वहां पे जो एम्बैरेसमेंट होगी ना, आप उससे खुद को बचाने के लिए काम कर लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम अपनी इमेज को बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते हम किसी की नजरों में बुरा होने। तो आप वो अपना रीजन बना के स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो as I always say and as Sirjan is saying, you need to strengthen your why. अगर आपका why strong होगा तो how अपने आप आपके आगे आ जाएगा. See, a lot of people only focus on how और जो वो ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाते, वो यही रीज़न है कि उनके जो why है वो क्यों कर रहे हैं वो क्लियर ही नहीं है, कोई क्लैरिटी ही नहीं है ज़िंदगी में, बस किसी ना किसी डायरेक्शन में घूमे जा रहे हैं विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी पर्पस. हैव पर्पस इन योर हैंड्स, इन योर हेड, इन योर हार्ट. सो जब भी आप क्विट करने की सोचें तो आप इस वाई को हर बार याद करें ताकि ये आपको पावर दे सके, स्ट्रेंथन कर सके और कि आपको ये क्यों करना है. राइट सृजन? एब्सोल्युटली, या बिल्कुल. अगर आपको वाई मिल जाएगा तो मतलब लोग बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम काम क्यों स्टार्ट करें, तो आप अगर वाई ढूंढ लोगे तो आपकी 90% प्रॉब्लम्स वैसे ही ठीक हो जाएंगी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So we really got a lot of things to learn from you, Srijan, and I hope my audience is really gonna connect with you on your Instagram username. Please reveal your all the Instagram all the social media platforms so they can connect with you. And I really want, because he's actually serving a lot of value on his different social media platforms, do reach out him anyhow. So please release. ओके, सो हाँ जी, तो हमारे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक यूजर नेम बिल्कुल सेम है. सृजन भारद्वाज से सर्च कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे SRIJANBHARTWAJ एंड आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे सेम यूजर नेम के साथ रीच आउट कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. एंड गाइज, आई एम गोना मेंशन हिज यूजर नेम below. You can actually connect with him on any social media platform. I hope you guys got a lot of value. Thank you for being the part of We the Youngsters podcast. We will continue to serve you value and a lot of value to help you every single time. Thank you. See you. Bye bye. Take care.